This is the another video in which we will study the questions on vector. First of all, we come to know the new formula, that is the angle between the two vectors. अगर हमारे पास दो vectors हो a and b, a vector and b vector, then the angle between these two vectors is given by cos theta is equals to a vector dot b vector upon mod a vector mod b vector का multiplication. This is how we find the angle between the two vectors a vector and b vector. Now let us do the numerical based on this. See, we have a question: find the angle between two vectors a vector and b vector with magnitudes given it is root 3 and root 2. Root 3 and 2, not root 2, root 3 and 2 respectively, having a vector dot b vector is equals to root 6. ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, उन्होंने मैग्नीट्यूड दे रखे हैं वेक्टर्स के और वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, एंगल के. तो व्हाट इज गिवन टू अस, a vector dot b vector is equals to root 6. It is given. ठीक है, and vector a is equals to root 3 and mod of vector b is equals to 2. Mod of a vector is equals to root 3 and mod of b vector is equals to 2. ठीक है, then angle between vector a and vector b is, what is that, cos theta is equals to a vector dot b vector upon mod of a vector into mod of b vector. तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की जगह हमने सीधे क्या वैल्यू रख दी, रूट 6. मॉड a वेक्टर की जगह हमने रख दिया रूट 3 और मॉड ऑफ b वेक्टर की जगह 2. तो रूट 6 को हम रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं अपॉन रूट 3 इंटू 2. रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया. आप रूट 2 और रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 रूट 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई आपकी 1 बाय रूट 2. तो cos थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1 बाय रूट 2. तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 बाय रूट 2. आप इसको कैल्सी से चेक करेंगे, cos इनवर्स का आपका बटन होता है कैल्सी में, वहां से आप चेक करेंगे cos इनवर्स 1 बाय रूट 2, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 45 डिग्री मिलेगी. तो 45 डिग्री को हम पाई में कैसे लिख लेते हैं, सॉरी रेडियन में हम कैसे लिख लेते हैं, पाई बाय 4. That means we get theta is equals to pi by 4. Therefore, the angle between the two vectors A and B is pi by 4. This is how we solve. Okay. Now let us do the next numerical, which is also based on the angle between the two vectors. But in this question, vectors are not given. In the next question, we will solve when the vectors are given. Okay. Next question is, find the angle between the vectors I cap minus 2j cap plus 3k cap and 3i cap minus 2j cap plus k cap. So, in the question we have given the vectors. Let solution में हम देख लेंगे, let a vector is equals to I cap minus 2j cap plus 3k cap. तो mod of a vector क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14. तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 14. बी वेक्टर हमने ले लिया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. तो मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 1 इज 14. So this is again equal to 1 root 14. Okay. Now we are going to find out the angle between the two vectors. For that, first we will find the value of a vector dot b vector. A vector dot b vector यानी I cap minus 2j cap plus 3k cap dot 3i cap minus 2j cap plus k cap. थोड़ा सा डॉट वेक्टर में समझिएगा, जब हम डॉट लेते हैं दो वेक्टर्स का तो हम सिर्फ मल्टीप्लीकेशन लेते हैं i का i से, j का j से और k का k से, क्योंकि I cap dot I cap is 1. I cap square is equals to 1. ऐसे ही j cap dot j cap is equals to 1. Similarly, k cap dot k cap is equals to 1. But
If you take I cap dot j cap, it is equals to 0. If you take j cap dot k cap, it is also equal to 0. K cap dot I cap, this is also equal to 0. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू 0 होगी. इसको आप j cap dot I cap लिखते हैं, दोनों की वैल्यू 0 होती है. I cap dot k cap लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू 0 होती है. तो हम सिर्फ I का I से मल्टीप्लाई करते हैं, j का j से और k का k से. ये चीज आप ध्यान रखिएगा जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का. अब देखिए जैसे हमने यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिया दो वेक्टर्स का, तो I का यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 into 1 3. यहाँ j का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ भी -2. -2 into -2 is +4. यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 into 1 is 3. ठीक है, तो कितना आ गया, 3 + 3 6, 6 + 4 10. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10. तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू जो आ गई हमारी ये आ गई. ठीक है, नाउ वी राइट द फॉर्मूला फॉर द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A vector and B vector, which is equals to cos theta is equals to A vector dot B vector upon mod of A vector mod of B vector. A vector dot B vector की जगह हमने लिख लिया 10. mod A vector √14 है, mod B vector भी √14 है, तो √14 into √14 14 हो गया. आपने इसको 2 से काटा, 5/17 आया. तो cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 5/7. तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 5/7. क्योंकि 5/7 की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 5, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया. Therefore, the angle between the vectors A and B is equals to cos inverse of 5/7. Okay. So this is how we solve the angle between the two vectors. Next, we will study the projection of one vector on the other vector. First of all, understand the word projection. What is the projection? Projection is an presentation of an image on any surface. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन हम दूसरे वेक्टर पर फाइंड कर रहे हैं. सपोज अगर हम ए वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं ऑन सम अनदर वेक्टर बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप ए वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो एक दूसरे वेक्टर बी पर, तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए अपॉन बी अपॉन मॉड ऑफ बी. जिस पर हम फाइंड करते हैं उसका मॉड हम नीचे लिखते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर वन वेक्टर टू द अनदर वेक्टर. ठीक है, नाउ लेट अस डू द न्यूमेरिकल ऑन दिस. See the next numerical. Find the numerical which is based on the projection. Find the projection of the vector I cap minus j cap on the vector I cap plus j cap. तो हमने मान लिया let A vector is equals to I cap minus j cap and B vector equal to I cap plus j cap. Now we have to find out the projection of A vector on the vector B. So first of all we have to find out the डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दी टू वेक्टर. तो आपने डॉट प्रोडक्ट लिया आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप. तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 into 1 is 1. यहाँ इसका -1 है और इसका 1 है, तो -1 into 1 is -1. तो कैंसल आउट होगा, इसकी वैल्यू आ गई 0. अब हम ऑन बी वेक्टर निकाल रहे हैं, तो हमें मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालना होगा. Mod of B vector is equals to 1 का square plus 1 का square, which is equals to √2. Now we are finding the projection of the vector A on the vector B is equals to A vector dot B vector अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर. तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0/√2 which is equals to 0. Thus the projection of vector A on B vector is equals to 0. Okay, let us do the next another example based on the projection of the vector. That is find the projection of the vector. मैं वेक्टर चेंज कर रही हूँ, I cap plus 3j cap plus 7k cap on the vector is given as 7 I cap
माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप, है ना। तो हम वैसे ही मान लेंगे, ए वैक्टर और बी वैक्टर को अलग अलग मान लेंगे। हम मान लेंगे लेट ए वैक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, and b vector is equals to 7 I cap minus j cap plus 8 k cap. Then you find the dot product of the vector A and vector B, which is equals to I cap plus 3 j cap plus 7 k cap dot 7 I cap minus j cap plus 8 k cap. This will be equal to, देखो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 7 है, तो 1 into 7 is 7, 3 है और इसका 1 है, तो 3 into -1 is -3, 7 है, इसका 8 है, 7 into 8 is 56। इसको आप सॉल्व करोगे, 56 में आपने 7 ऐड किए 63, 63 में से आपने 3 माइनस किया, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 60, तो दिस विल बी इक्वल टू 60। ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द मॉड ऑफ बी, विच इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर इज 49, 1 का स्क्वायर इज 1, 8 का स्क्वायर इज 64, तो ये आ गया आपका 10, 14, 1, 114, which is equals to under root of 114, ठीक है, under root of 114। इसके अगर हम फैक्टर करते हैं 114 के 5 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं, तो सॉरी 2 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाएगा 557, 3 से किया हमने, 3 1 are 3, 3 9 are 27, तो हमें कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है इसके, तो इसका स्क्वायर रूट हम लिख नहीं सकते हैं, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। नाउ द प्रोजेक्शन of the vector A on the vector B is equals to, क्या हो जाएगा, A vector dot B vector upon mod of B vector, which is equals to A vector dot B vector हमने निकाला हुआ है 60, mod of B vector हमने निकाला हुआ है root 1 upon 1, root of 114, so the projection is 60 upon root 114 for this question. Okay, the projection will be this. अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपका स्टार्ट होगा परपेंडिकुलर का। कोई भी दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर कहलाते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। अगर जैसे ए वेक्टर है, मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूं किसी दूसरे वेक्टर बी से, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आता है, तो हम कहते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यूनिट वेक्टर कौन होते हैं? यूनिट वेक्टर वो होते हैं जब हम किसी भी वेक्टर का मॉड लें और उसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो हम कहते हैं वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आपको दो कंसेप्ट मैंने बताए, एक बताया मैंने यूनिट वेक्टर का, एक बताया मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर का। परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, ठीक है, एक होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, एक होता है यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर में अगर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो वेक्टर कहलाते हैं परपेंडिकुलर, और अगर किसी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू 1 आए या मैग्नीट्यूड 1 हो तो उस वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। नाउ लेट अस डू द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। show that each of the given 3 vector is a unit vector। ये आपको 3 वेक्टर गिवन है। also show that they are mutually perpendicular to each other। तो सोल्यूशन में हम क्या मानेंगे, लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 49, ये भी 49, ये भी 49। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 9 इज 13, 13 प्लस 36, क्योंकि देखिए ये 4 हो गया, इसका स्क्वायर 9 हो गया, इसका स्क्वायर 36 हो गया। तो जब आपने इसको प्लस किया ये आ गया 49, तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 49 अपॉन 4 का 7 का स्क्वायर 49 होता है, विच इज इक्वल्स टू 1। हेंस ए इज अ, दिस इंप्लाइज ए वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऐसे हमने ले लिया
बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना हो गया हमारा 3/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, वही वैल्यू आई 9, 36 और 4, तो वही आ गया आपका 49/49 which is equals to 1. This implies B vector B is a unit vector. अब हमने ले लिया C vector. C vector हमारा आ गया 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो हमने लिया मॉड ऑफ C vector which is equals to अंडर रूट ऑफ 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/7 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, फिर से वही आई, देखिए 636, 4 और 9, तो दिस इज अगेन 49/49 which is equals to 1. This implies vector C is a unit vector. ठीक है, पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर कैसे हैं हमारे यूनिट वेक्टर। नाउ वी आल्सो हैव टू शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में हम क्या करेंगे, एक एक करके सबका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। पहले हमने लिया A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर यानी प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो ये 1/7 और 1/7 तो मैंने लिख लिया 1/49, इधर लिखा डॉट प्रोडक्ट। 2 into 3 is 6, 3 into minus 6 is minus 18, 6 into 2 is 12, तो देखिए 12 plus 6 is 18 और minus 18 कट गया, आ गई वैल्यू 0। ठीक है, दिस implies A vector is perpendicular to B vector. अब हमने लिया B vector dot C vector, तो ये आ गया 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डॉट 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो 1/49 तो मैंने लिख लिया बाहर, 3 into 6 is 18, minus 6 into 2 is minus 12, 2 into minus 3 is minus 6, which is again this is minus 18, ये plus 18, ये वैल्यू आ गई आपकी 0। तो this implies vector B is perpendicular to vector C. नेक्स्ट हमने निकाला C वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो C वेक्टर हमने लिख लिया 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो 1/49 हमने एज यूजुअल बाहर लिखा। ठीक है, 6 into 2 is 12, 2 into 3 is 6, माइनस 3 into 6 is minus 18, देखिए फिर से कट गए, ये वैल्यू आ गई 0। दिस implies vector C is perpendicular to vector A. ठीक है, this implies the given three vectors are mutually perpendicular to each other. This implies the given three vectors are mutually perpendicular to each other. Okay. Now in the question, next question, it is given find mod of A vector and mod of B vector. Given क्या है आपको, A plus B vector dot A vector minus B vector is equals to 8, यानी इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें दे रखा है 8 और मॉड ऑफ A बराबर दे रखा है 8 ऑफ मॉड ऑफ B। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सोल्यूशन इसका करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 जो हमें गिवन है। हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा A वेक्टर डॉट A वेक्टर, फिर पहले हमने इसका लिया, ठीक है, फिर हमने लिया इसका, तो आएगा माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर। ठीक है,
प्लस फिर हमने इसका इससे लिया तो ये आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर हमने इसका इससे लिया माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 8 ले रखा है। ये दोनों तो कट गए क्योंकि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? इट इज द मॉड ऑफ ए। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है? इट इज मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 8, है ना। अब हमें दे रखा है मॉड ऑफ ए जो है वो 8 ऑफ मॉड ऑफ बी के बराबर है, तो हमने क्या लिख लिया 8 मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ बी। क्या किया हमने? मॉड ऑफ ए की जगह हमने सिर्फ ये वाली वैल्यू पुट कर दी है इक्वल टू 8। 8 में से 1 गया 7, 7 मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 8, तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 8/7। देन मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या थी हमारी? 8 ऑफ मॉड ऑफ बी, यानी 8 इंटू 8/7 विच इज इक्वल्स टू 64/7। तो एक आपको मॉड ऑफ बी निकालना था, उसका आंसर ये आ गया। एक आपको मॉड ऑफ ए निकालना था, उसका आंसर ये आ गया। So this is how we find the value of mod of A and mod of B. Clear है? एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ पर a वेक्टर डॉट a वेक्टर इट इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ a, इट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर, एंड b वेक्टर डॉट b वेक्टर इट इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ b, इट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8, है ना। अब मॉड ऑफ a की वैल्यू हमें दे रखी है 8 रूट b, तो इसकी जगह पर हम रखेंगे p क्या आ जाएगा हमारा 64 मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, ध्यान रखिएगा। a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 64 में से 1 गया 63, 63 मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, तो मॉड ऑफ b की वैल्यू आ गई हमारी 8/63 का अंडर रूट। 8/63 का अंडर रूट हमने लिया, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 और 63 को हम लिख सकते हैं 3√7। कैसे? देखिए 8 को आपने फैक्टर किए, ये 2 आपने बाहर लिख लिया, ये √2 के अंदर कर दिया। 63 के आपने फैक्टर लिखे, 63 को आपने 3 से किया 21, 3 से किया 7, तो ये 3 का जो पेयर आपने बाहर लिख लिया, जो एक बचा उसको रूट में लिख लिया, ठीक है। ये तो वैल्यू आ गई हमारे मॉड ऑफ बी की वैल्यू, एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है। अब मॉड ऑफ ए हमारा है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू है हमारा 8√b, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू हो गई 8 इंटू 2√2/3√7 विच इज इक्वल्स टू 16√2/3√7। दिस इज द आंसर ऑफ मॉड ऑफ रूट ए, ठीक है। Sorry, this is the answer of mod of a vector. So this is how we find the mod of a vector and mod of b vector. Next question है, we have to evaluate the product of these two vectors, है ना। तो देखिए जब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे -5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका इससे होगा, है ना, तो क्या आ जाएगा 3a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, ठीक है। इसका जब हम इससे निकालेंगे 3a वेक्टर डॉट 7b वेक्टर, इसका जब हम इससे निकालेंगे -5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, इसका जब हम इससे निकालेंगे -5b वेक्टर डॉट 7b वेक्टर, ठीक है। समझ में आया? एक एक करके हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया। अब देखिए 6a वेक्टर सॉरी 3a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6, और मैंने आपको बताया था a वेक्टर डॉट a वेक्टर होता है हमारा मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर, तो ये आ गया मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ये आया 3 इंटू 7 इज 21, 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है, ये हमने ऐसे लिखा रहने दिया, माइनस ये आ गया 5 इंटू 10 इज 5 इंटू 2 इज 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर,
ये दोनों सेम होते हैं आपके। -5 into 7 is 35 और ये आ गया मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 6 ए मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो 21 में से 10 गए बचा 11। आपने लिख लिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -35 mod of b vector का whole square. This is the answer for this question. This is the product that we evaluate from this question. Okay.